السلام علیکم دوستو، آج ہم وقت کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ایک ایسا سفر جو ہمیں لاہور کے دل کی گہرائیوں تک لے جائے گا، جہاں تاریخ پتھر اور سنگ مرمر میں جمی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان کی مشہور علامتوں میں سے ایک کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، ایک ایسی یادگار جو طاقت، لچک اور لاکھوں لوگوں کے خوابوں کا ثبوت ہے، مینار پاکستان۔ یہ مینار صرف ایک ڈھانچہ نہیں ہے، یہ شناخت کی علامت، جدوجہد کی عکاسی اور امید کی یادگار ہے۔ یہ ان لاکھوں لوگوں کی یادگار میں ہے جنہوں نے آزادی کا خواب دیکھنے کی ہمت کی، اور اس مینار پاکستان کو اس جگہ پہ بنایا گیا جہاں پہ پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا۔ آج میں آپ کو مینار پاکستان کی ایک ایسی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ ہر پتھر، ہر تہہ اور ہر گھراؤ ایک راز رکھتا ہے، ایک ایسی کہانی جو کہے جانے کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ عزم، قربانی اور فتح کی ایک سنسنی خیز کہانی ہے۔ تصور کریں 1940 کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں۔ یہ شہر مختلف ایکٹیویٹیز، کلچر، ٹریڈ اور پولیٹکس کی وجہ سے زندہ ہے، لیکن اس کے ہلچل سے بھرے بازاروں، اس کی عظیم مغل فن تعمیر اور اس کی جاندار گلیوں کے متحرک رنگوں کے نیچے کچھ اور ہی پک رہا ہے، ایک توقع کا احساس۔ یہ شہر نظریات اور نظریات کا پگھلنے والا برتن ہے، اور ہندوستان میں سیاسی ماحول گرم ہو رہا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس برطانوی راج سے آزادی کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ خوف بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کی آواز ہندو اکثریت غزہ میں گم ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں منٹو پارک میں۔ یہ پارک لاہور کے قلب میں ایک نخلستان ہے۔ اس پارک نے پہلے بہت سے سیاسی جلسے دیکھے تھے، مگر 23 مارچ 1940 کو کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے۔ برطانوی ہندوستان کے کونے کونے سے مسلمان یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ ہوا توقع کے ساتھ موٹی ہے۔ انسانیت کے اس سفر میں ایک ایسے رہنما کھڑے تھے جو تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیں گے، خاص طور پر محمد علی جناح۔ اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے، آخر یہ لاکھوں لوگ کیوں آئے تھے؟ لوگ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے آئے تھے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ برصغیر کے کونوں میں بسنے والے لاکھوں مسلمانوں کے لیے۔ وہ ایک ایسے وطن کی خواہش کا اظہار کرنے آئے تھے جہاں وہ اپنے عقیدے، ثقافت اور اپنی اقدار کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس گیدرنگ کا ایک واضح مقصد تھا، اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا اپنی سرزمین پر۔ اپنی آنکھیں بند کرے اور ایک تصویر بنائے۔ منٹو پارک میں جمع ہونے والے ایک بڑے ہجوم پر سورج غروب ہو رہا ہے۔ آس پاس کے سٹالوں پر سرگوشیاں، چوش و خروش کی آوازیں اور چائے کے کپوں کے ٹپکنے کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ لوگوں نے اس تاریخی لمحے کو دیکھنے کے لیے کئی دن کا سفر کیا تھا اور لاہور میں جمع ہوئے تھے۔ بڑے سے ہجوم میں ایک اونچی ٹوپی لگائے سب سے اونچے کھڑے محمد علی جناح ہیں، اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں اے کے فضل الحق، جو آج ایک ایسی تقریر کرنے جا رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں امر ہو جائے گی۔ اس دن قرارداد لاہور پیش کی گئی، ایک دستاویز پیش کی گئی جس میں ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی علاقوں کی آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ یہ ایک الگ ریاستوں کے مطالبے سے کہیں زیادہ تھا، یہ ایک اعلان تھا، شناخت کا منشور تھا۔ اس کے بعد محمد علی جناح نے اپنی تقریر کر کے سب واضح کر دیا، مسلمان ایک مذہبی اقلیت نہیں تھے، ایک قوم تھی اور انہیں اپنے وطن کی ضرورت تھی۔ اور جیسے ہی جناح بول رہے تھے کچھ جادوئی ہوا، ہجوم منظوری میں گرجتا رہا، ہزاروں آوازیں یکجہتی سے گونج اٹھی، پاکستان کے خواب میں ہوا بھر دی گئی۔ اس لمحے کی اہمیت ناقابل تردید تھی۔ قرارداد لاہور منظور ہوئی اور پاکستان کا بیج بو دیا گیا۔ 7 سال بعد وہ بیج اس قوم میں کھلے گا جسے آج ہم جانتے ہیں، لیکن یہ وہی گراؤنڈ جہاں وہ کھڑے تھے، منٹو پارک، ایک مقدس جگہ بن جائے گی جہاں ان کی نسلیں اس کی عزت کریں۔ سال گزر گئے اور پاکستان 1947 میں ایک ملک کے طور پر ابھر آیا، لیکن 1940 میں ہونے والی قرارداد لاہور کا امپیکٹ ان کے ذہنوں پر ابھی بھی موجود ہے۔ حکومت پاکستان نے یہ سوچا کہ اس دن کو یاد کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے 1960 میں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے منٹو پارک میں ایک مینار بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔
यादगार महज एक ढांचा नहीं थी, बल्कि इसे उस दिन की हर चीज की अलामत के तौर पर बनाया गया। ईमान, इत्तेहाद, जदोजहद और मुस्लिम लीग के ख्वाबों की फतह, ये मंसूबा शुरू हुआ और ये फैसला किया गया कि इसको मीनार पाकिस्तान यानी टावर ऑफ पाकिस्तान के नाम दिया जाएगा। ख्याल ये था कि ये मीनार ना सिर्फ उस दिन को याद करने के लिए बनाया जाएगा, बल्कि मुस्तकबिल में नई कौम के सफर की अलामत के लिए भी काम करेगा। इसका संगे बुनियाद 23 मार्च 1960 यानी कि करारदाद लाहौर से 20 साल बाद रखा गया। इसको कुछ इस तरह से बनाने का फैसला किया गया कि ये ना सिर्फ उस दिन की यादगार के लिए हो, बल्कि पाकिस्तान की सकाफत को भी रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए तुर्की के मशहूर इंजीनियर मुराद खान, जो कि बेसिकली पाकिस्तानी थे, उन्हें ये मंसूबा दिया गया। देखा जाए तो उस दौर में इनकी जो फीस थी वो 26 लाख के अराउंड अबाउट थी, मगर उन्होंने ये सारा काम बिल्कुल फ्री किया। अब मीनार पाकिस्तान की हाइट के बारे में बात की जाए तो मीनार पाकिस्तान टोटल 70 मीटर यानी 70 मीटर का, और इसकी फुट में बात करें तो 230 फुट का है। मीनार पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन के ऊपर है तो ये बेसिकली 4 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला फ्लोर जो खुरदरे और गैर पालिश शुदा पत्थरों से बनाया गया है, तहरीक आज़ादी के इब्तदाई दिनों में जो अफरा तफरी हुई थी उसकी नुमाइंदगी करता है। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की जदोजहद की अलामत है, क्योंकि उन्होंने बरतानवी जालिम हुक्मरानी और हिंदू तसल्लुत की जबरदस्त लहर के नीचे अपनी एक जगह तलाश करने की कोशिश की। ये वो वक्त था जब मुसलमानों के लिए आज़ादी का रास्ता वाज़ेह नहीं था और आगे का रास्ता बहुत सारे चैलेंजेस से भरा हुआ था। अब चलते हैं दूसरे फ्लोर के ऊपर, जो कि कुछ अच्छे पत्थरों से बना हुआ है। ये उस टाइम को शो करता है कि जब मुस्लिम लीग की क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने हाथों में ली, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुसलमानों की तहरीक को ताकत मिली और मुसलमानों ने मुल्क के अंदर रैलियां निकालना शुरू कर और अपनी नजरें एक वतन पर मरकूज कर। अब चलते हैं तीसरे फ्लोर के ऊपर, जो कि चमकता हुआ है और बिल्कुल चमकदार नजर आता है। ये उस वक्त को शो करता है जब मुसलमानों की आइडियोलॉजी वाज़ेह थी कि हमें एक मुल्क चाहिए, हमें अपना अलग वतन चाहिए, और ये वो वक्त था जहां पाकिस्तान की तहरीक के धागे बिल्कुल मजबूत थे। अब चलते हैं फोर्थ फ्लोर और आखिरी फ्लोर, जो बिल्कुल सफेद संगे मरमर से बना हुआ है और फुल चमकदार है। ये तहरीक पाकिस्तान की फतह की नुमाइंदगी करता है। ये उस लम्हे को शो करता है कि जब हजारों कुर्बानियों के बाद मुसलमानों को अपना एक पाक व पाकीज़ा वतन मिला। अब देखा जाए तो इसकी कंस्ट्रक्शन सख्त और खुरदरे पत्थरों से बनकर चमकदार और एंड में सफेद संगे मरमर तक पहुंचती है। इस बात की वजाहत करती है कि जब मुसलमानों ने आज़ादी की तहरीक शुरू की तो स्टार्टिंग में अफरा तफरी हुई और एंड में मुसलमानों की मुसलसल जदोजहद के बाद उनका मुल्क उनको मिला, एक आज़ाद ममलिकत वजूद में आया। अब बात करते हैं कि ये अजीम व आलिशान मीनार पाकिस्तान के ऊपर टोटल खर्चा कितना आया। उस दौर में टोटल 17,58,000 रुपए मीनार पाकिस्तान के ऊपर लगे थे। अगर आज की इन्फ्लेशन के साथ हम एडजस्ट करें तो तकरीबन 21 करोड़ 65,60,034 रुपए आज के बनते हैं। मगर यहाँ पे एक खूबसूरत हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान के लोगों ने भी अपना हिस्सा डाला। मुख्तलिफ शहरों में अतियात के अंबार लग गए। स्कूल के बच्चों से लेकर अपनी जेब खर्च बचाने वाले मजदूर तक सब ने इसमें शमूलियत की। पूरी कौम इस यादगार की तामीर के पीछे खड़ी हो गई। इसमें इस्तेमाल होने वाला मवाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से मंगवाया गया था। सुर्ख रंग का पत्थर जो आज़ादी की तहरीक में लड़ने वालों के खून को रिप्रेजेंट करता है, वो मांग से मंगवाया गया था। सफेद रंग का संगे मरमर का पत्थर जो पाकीज़गी और अमन की नुमाइंदगी करता है, इसको मर्दान और सांगला हिल से मंगवाया गया था। इसलिए इस मीनार को बनाने में जो मवाद इस्तेमाल हुआ था वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की नुमाइंदगी बन गया। इस तामीर की निगरानी मियाँ अब्दुल गनी मुगल ने ली, जो उस वक्त के मशहूर इंजीनियर्स में से एक थे। इसकी गहरी बुनियादें इसलिए बनाई गई ताकि ये ज़ल्ज़लों से महफूज रहे। इसको इतना ज्यादा मजबूत इसलिए बनाया गया पाकिस्तान की मजबूती सदियों तक कायम रहे। अब ये इतना बड़ा दिखने वाला मीनार एक अमरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत से राज पोशीदा हैं जिसको एक आम पाकिस्तानी नहीं जानता। अब उनमें से पहला ये है कि इसमें बहुत सारी तहरीरें लिखी हुई हैं। जैसे एक करारदाद लाहौर जो उस वक्त 1940 में पेश हुई थी, उसके दस्तावेजात हैं जो 3 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर लिखी हुई हैं, उर्दू, इंग्लिश और बंगाली। अब कुछ लोगों का यहाँ पे सवाल होगा कि बंगाली क्यों, क्योंकि जब ये बनाया गया था तब बांग्लादेश जो पाकिस्तान का एक पार्ट था, शुमाली पार्ट था, वो उस वक्त इकट्ठे था। ये उन तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद को अक्कासी करता है जिन्होंने मिलकर आज़ादी की जंग लड़ी। अब मीनार पाकिस्तान को बनाने में ना सिर्फ सकाफत को मद्देनजर रखा गया था,
बल्कि इस्लामी फन तामीरात को भी मद्देनजर रखते हुए बनाया गया था। तो आपको पूरे ढांचे में, खास तौर पर ऊपर वाले हिस्सों में इस्लामी हिंसे नजर आएंगे, क्योंकि इस्लामी फन तामीरात में इस्लामी जो हिंसे हैं, अरेबिक वर्ड्स, वो ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं। ये इस बात को वाजे करते हैं कि किस तरह इस्लाम ने तमाम मुसलमानों को इकट्ठे रखा और एक आज़ाद मुमलिकत में मदद की। ये जो अरेबिक हिंसे हैं, ये हादसाती तौर पर नहीं लिखे गए, बल्कि ये इस बात की वजाहत करते हैं कि किस तरह तमाम मुसलमान एक यूनिटी के साथ एक दूसरे से जुड़े हैं। मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे और ऊपर एक स्टार बना हुआ है। अब यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान के जो फ्लैग में स्टार है उसको रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इस्लामी कानून और इस्लामी फन तामीरात के अंदर जो स्टार है, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आने वाला मुस्तकबिल खुशहाल और साले पसंद होगा। एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो आपको मालूम नहीं होगा वो ये कि करारदाद लाहौर की जितनी दस्तावेजात थी और जितनी सारी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सारी मीनार पाकिस्तान के नीचे दफन की गई और उसके ऊपर मीनार पाकिस्तान को खड़ा किया गया। एक और बात जो काफी मुसलमान कम जानते हैं वो ये कि मीनार पाकिस्तान की जो शक्ल थी, ये शेप थी, वो मुगलों के फन तामीर से बहुत मुतासिर थी। अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे ये कैसे। इसकी एक एग्जांपल दिल्ली में बनाया गया कुतुब मीनार है, क्योंकि कुतुब मीनार मुगलों की फतुहात की निशानी को पेश करता है और इनकी मजबूत हुकूमतों की नुमाइंदगी करता है। इसी तरह पाकिस्तान को बनाने में जो पाकिस्तान की तहरीक की फतह मिली, उसको मीनार पाकिस्तान रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे आखिरी सवाल जो मेरे तमाम व्यूवर्स तक रह गया है वो ये कि आज के दौर में मीनार पाकिस्तान क्या हैसियत रखता है। आज के दौर में जो मजबूत सबूत जिंदा है वो यूनिटी है। मीनार पाकिस्तान सिंबल ऑफ यूनिटी है तमाम पाकिस्तानियों की। किसी भी ग्रोह और ज़बानी तफरकात को ख़त्म करता है और ये शो करता है कि इसमें तमाम पाकिस्तानी हैं और वो एक सिंबल के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा, ये लाहौर की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मीनार पाकिस्तान मौजूद नहीं है बल्कि एक मिंटू पार्क है। इसको बढ़ा के बहुत बड़ा पार्क कर दिया गया था। पाकिस्तान के नफीस फूलों को यहाँ पे ग्रो करवाया गया था, जिससे एक बहुत खूबसूरत पार्क वजूद में आया। तीसरा, ये कि एक जगह बन चुकी है सोशल एंड पॉलिटिकल गैदरिंग के लिए, जो कि हम अक्सर औकात देखते रहते हैं। चौथा, ये कि हमारी एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है, यानी कि हमारे कल्चर को ये बयान करती है। क्योंकि मैं पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं ये किस तरह पाकिस्तान की सकाफत को रिप्रेजेंट करती है। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये ग्लोबल रिकॉग्निशन है, यानी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों को आपस में जोड़ती है। ना सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों को बल्कि पाकिस्तानी तमाम अक़लियतों को एज अ पाकिस्तानी मुत्तहिद करती है, क्योंकि ये हमारा नेशनल सिंबल है। जब हम मीनार पाकिस्तान की भरपूर तारीख, पोशीदा राजों और गहरी अहमियत को तलाश करते हुए अपना सफर को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।